Friends, two of my recent hedge fund videos received rave reviews from you, and a lot of you had requested for detailed lecture series on a hedge fund management. So here I am, friends, with a 10-part lecture series on hedge fund management. In this first episode, friends, discover the origins, core concepts, model applications of hedge funds. So this will be a short 15 minutes first episode in which I will take you through what is a hedge fund, the history of hedge funds, why hedge funds, popular hedge fund terminologies, which will be very helpful to you in your interviews, some really good movies and books for inspiration so that you can actually learn in a more animative and interesting way. What are the various salaries in hedge funds and some of the industry giants you can follow on a day to day basis so that you get to know more about hedge funds. So let's get started, friends. First, friends, what is a hedge fund? Very simple, friends. First of all, you should know that this name hedge fund is a misnomer. Misnomer होता है मतलब जिसका नाम जैसा होता है वो एक्चुअली में वैसा नहीं होता, right? Which means what? It means that hedge fund generally, if you look at the name, it is two parts, fund and hedge. So it looks like a big pool of money or big pool of fund which is hedged against any risk. Hedge का मतलब होता है कि रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क को कम करना. But that is where it is a misnomer, because hedge funds generally tend to take lot of risk. It takes much higher risk than normal funds, and that is why the expectation of returns in a hedge fund is supremely high. बहुत high returns की कामना होती है. So if you really want 100%, 500%, 200% kind of a return, so you got to take lot of risk, एंड हेज फंड ऑफर्स यू वेरियस स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से आप बहुत सारा रिस्क ले सकते हैं. अब ये हेज फंड्स क्या होते हैं, इसमें व्हाट काइंड ऑफ रिस्क कैन यू टेक एटसेट्रा, विल सी दैट इन दी फ्यूचर एपिसोड्स एज वेल. बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि हेज फंड जो है वो उसका नाम जो है उस पर नहीं जाना है आपको. हेज फंड बेजोड़ तरीके से रिस्क लेता है एंड उसका पूरा इंटेंशन यही होता है दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स फॉर यू. Number two, what you should remember is that versus mutual funds, it is unregulated. Mutual funds में बहुत सारी बंदिशें होती है. You have lot of constraints by the regulatory authorities. But when it comes to hedge fund friends, then there are not many restrictions. And that is one great thing about hedge funds, that if you are a wealthy individual who likes to take risk, then you can park your funds in this. The fund managers, they do not run any constraints, or they take lot of bold bets because it is unregulated, right? And hence, friends, this last point, if you see, right, let me take out my laser pointer as well. So if you look at this last point, it is limited to wealthy individuals. So generally hedge funds has a constraint that you need to be wealthy. If you are a middle class income guy or not a very rich guy, then hedge fund would not be open for you. There is a certain guardrail of the amount of net worth which you can have before you can park your money in hedge funds, right? क्विकली गेटिंग ऑन टू हिस्ट्री ऑफ हेज फंड्स. तो दोस्तों ये नाम आपको पता होना चाहिए, एल्फ्रेड विंसलो जोन्स. इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे एज वी प्रोग्रेस इन दिस लेक्चर सीरीज. बट जस्ट रिमेंबर यार दैट दिस जोन्स गाई was the guy who started hedge fund in 1949. Imagine कीजिए 1949. Try to juxtapose it with India. इंडिया को 2 साल हुए थे आज़ादी मिले, हम भूखे मर रहे थे, हमको पता नहीं था, अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन प्लेस नहीं था, राइट? और अभी जो है हम जस्ट डिसाइड ही कर रहे थे कि आज़ादी के बाद हम क्या करें. और ये अंग्रेज आदमी जो आपको दिख रहा है आपकी फ़ोटो में लंबी मूँछों की तरह मेरे जैसे, राइट, वो जो है भाई हेज फंड चला रहा था, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार दैट in his first hedge fund he raised $100,000. 40K was from his own pocket. So in this 100,000 hedge fund which he first created, this was the first hedge fund he created, he invested just 40,000 rupees. The remaining $60,000 was taken from various investors. And that is also one of the beauties of hedge fund, friends, that you as a hedge fund manager take a lot of external funds to build that leverage. You don't invest your entire fund. And this is the catch funds. That is why his fund was named hedge fund, that he used a lot of short selling. अब short selling क्या होता है दोस्तों? आप इस तरीके से सोचिए कि इस बंदे ने, जोन्स ने,
कुछ स्टॉक्स खरीदे। अब स्टॉक्स में क्या हो सकता है कि उसको हो सकता है कि यार स्टॉक्स ऊपर जाएँ इसीलिए उसने खरीदे होंगे। बट अगर किसी कारणवश वो स्टॉक्स नीचे जाते हैं, तो यार बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो इस बुद्धिमान आदमी ने क्या किया कि कुछ स्टॉक्स खरीदे और साथ ही साथ उनमें से कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सेल? इट मीन्स दैट यू डू नॉट एक्चुअली सेल द stocks, but you short sell. Short sell means that yeah, you will on paper sell the stocks, which means that on paper you will get some money by virtue of selling the stocks, and in future, when the if the stock prices go low, then you can very well buy it from the market and give back the stocks, right? So short selling is very highly used in hedge fund strategies, और इस बंदे ने इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इसने शॉर्ट सेलिंग किया, एंड इसीलिए इसके फंड का नाम हेज फंड से शुरू हुआ, क्योंकि उस फंड में कुछ हेजिंग हो रखी थी, कुछ रिस्क प्रोटेक्शन हो रखा था कि चलो भाई मैंने स्टॉक लिया, अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं जाता है तो जो मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ है एटलीस्ट उससे मैं कुछ कमा लूंगा, सो मेरे रिस्क, मेरा लॉस जो है वो कुछ कवर हो जाएगा। एंड इस टाइप की स्ट्रैटेजी को बोलते हैं हेजिंग स्ट्रैटेजी। बट ये स्टार्ट हेज फंड्स इस तरीके से हुआ था, इसीलिए इसको हेज फंड्स बोलते हैं। बट जो मैंने आपको पहले कुछ टाइम पहले बताया दोस्तों कि बट जैसे जैसे हेज फंड इवॉल्व किया उसमें मैसिव रिस्क टेकिंग शुरू हो गई, राइट, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड फंड था, और इसीलिए जो है वो धीरे धीरे हेज खाली नाम का रह गया, इसीलिए हेज फंड इज अ मिसनोमर, राइट। अब दोस्तों वाई हेज फंड्स? सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हेज फंड्स जनरली इज यूज्ड बाय lot of wealthy investors to take bold bets to generate high amount of alpha. अल्फा का मतलब होता है कि जो एक्सेस रिटर्न आप जनरेट करते हो ओवर एंड अबव द नॉर्मल रिटर्न्स विच यू कैन गेट इन द मार्केट। मान लीजिए मार्केट में आपको 10-12% 15% का रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे तो 30% 40% का रिटर्न चाहिए, क्योंकि मैं वेल्दी इन्वेस्टर हूँ, वेल्दी इंडिविजुअल हूँ। अगर इस बोल्ड बेट लेने के चक्कर में मेरा थोड़ा पैसा उड़ भी गया, थोड़ा पैसा नहीं भी आया तो भी चलेगा। तो दैट ये अल्फा जो है वेल्दी इन्वेस्टर्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए दे टेक बोल्ड बेट्स, दे टेक बोल्ड बेट्स टू जनरेट हाई अल्फा। एंड इसीलिए इसी अल्फा की तलाश में जो है हेज फंड्स बनाया जाता है, क्योंकि जनरली म्यूचुअल फंड्स जो है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स उठा लीजिए, जनरली मार्केट को ट्रैक करता है। मतलब जितना मार्केट अगर 12% 15% बना रहा है तो म्यूचुअल फंड भी 12-15% बनाएगा। बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों जिनके पास बहुत एक्सेस में पैसा है, इसलिए उनमें रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, राइट। तो इसीलिए वो हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, अगर सारा गंवा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रिस्क लिया और वो रिस्क चल गया तो मुझे 40% 50% 100% टाइप का रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए हेज फंड्स बनते हैं to cater to this unique need of very wealthy investors who say that because we have lot of money, we can take a lot of risk, but can we have lot of reward against that? So hedge fund manager comes into place and they say कि ठीक है सर, हम आपको जो है एक्सेस रिटर्न देंगे। इस एक्सेस रिटर्न को मार्केट टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं अल्फा। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एक फन फैक्ट आपको बताऊं तो आज हेज फंड मैनेज फंड्स जो हैं ओवरऑल अक्रॉस ग्लोबली, हेज फंड का साइज ग्लोबली है $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन। इनफैक्ट इंडिया के जीडीपी $4 ट्रिलियन है, और इंडिया के जीडीपी के बराबर ग्लोबल हेज फंड का साइज है। तो ये आपको अगेन पता होना चाहिए, इससे आपको स्कोप पता लगता है कि यार जितना बड़ा इंडिया का जीडीपी है उतना ही बड़ा जो है हेज फंड का बाजार है, राइट। अब दोस्तों ये जो फोर्थ टॉपिक है आज के लेक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंटरव्यूज के लिए। वाई? बिकॉज दोस्तों व्हेन यू सिट इन द इंटरव्यूज, तो पहले तो स्टेप बैक करते हैं, इंटरव्यूज में आपको क्यों कोई बुलाएगा? तो इफ यू आर फॉलोइंग माई videos right on this YouTube channel, then you would have seen यार that इंटरव्यूज में आपको इंटरव्यूअर खाली एक चीज के लिए बुलाएगा, अगर वो आपके रिज्यूमे को देखेगा और बोलेगा भाई इसके रिज्यूमे में मुझे कुछ ब्रांड दिख रहा है। अब वो ब्रांड आईआईटी का, आईएम का हो सकता है, किसी टॉप 10 एमबीए कॉलेज का हो सकता है, या एक बहुत ही शानदार सर्टिफिकेट आता है जिसको बोलते हैं CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो उसके अगर आपने 2 लेवल निकाल रखे हैं तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरे हजारों वीडियोज जो मैंने बना रखे हैं CFA पे वो देख लिए हैं, आपके रिज्यूमे में CFA है या कोई अच्छी बड़ा ब्रांड है,
जिसकी वजह से आपको इंटरव्यूज आ गए। बट अब यहाँ से जो कार्यक्रम है, मतलब यहाँ से सिलेक्शन होने का जो कार्यक्रम है दोस्तों, वो अब आपके हाथ में है। तो अगर आप, क्योंकि सीएफए आपको खाली इंटरव्यूज तक पहुंचा सकता है, उसके आगे जो क्रैक करना है उसको, वो तो इंटरव्यूज के माध्यम से होगा। सो इफ यू आर एक्चुअली सिटिंग फॉर सम हेज फंड management role, then these are the five terminologies which you should know. नंबर वन, अल्फा। अल्फा के बारे में हमने बात कर ली कि अल्फा है एक्सेस रिटर्न जो हेज फंड जनरेट करता है ओवर एंड अबव द मार्केट। हेज फंड यूज ही इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जनरली मार्केट के बराबर का रिटर्न देता है। वेल्दी इन्वेस्टर बोलते हैं भाई हम अमीर आदमी, हमको और ज़्यादा रिटर्न दो, एंड दैट इज़ वेयर हेज फंड कम्स इनटू पिक्चर एंड सेज कि सर हम आपको एक्सेस रिटर्न देंगे मार्केट के ऊपर। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अल्फा। इतनी बड़ी अंग्रेजी ना बोलनी पड़े, एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव द मार्केट, बहुत बड़ा अंग्रेजी हो गया। अमीर लोगों के पास टाइम कम होता है, टाइम कम होता है तो वो यार क्रिस्पली आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए हेज फंड मैनेजर ने बोला भाई इनको हल्के में और सस्ते में समझाओ, वो है अल्फा। राइट, ग्रेट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट विच इज कॉल्ड बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा इज नथिंग यार फ्रेंड्स बट सेंसिटिविटी of hedge fund portfolio vis-a-vis the market. What does it mean? बीटा का मतलब है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब होता है अगर मार्केट 1% से ऊपर जाएगा तो आपका हेज फंड कितने प्रतिशत से ऊपर जाएगा। दिस इज लाइक सेंसिटिविटी, विच मीन्स यार कि जो है अगर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो अगर आपका बीटा बहुत ज़्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जाने की कामना रख सकता है। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहाँ पर अगर मार्केट जो है आधा परसेंट ऊपर गया तो आपका जो है स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जा सकता है। बीटा जो है स्टॉक्स के लिए भी फॉलो होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, आप डालिए moneycontrol.com, वहाँ डालिए इन्फोसिस, नीचे जाइए बीटा आपको दिखेगा इन्फोसिस का, वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। तो बीटा जो है स्टॉक्स के लिए भी यूज़ होता है, बीटा जो है पोर्टफोलियोज के लिए भी ट्रैक होता है। बीटा इज नथिंग बट सेंसिटिविटी ऑफ योर पोर्टफोलियो वीजा वीज द मार्केट। राइट। लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जो मिस्टर जोन्स थे जिन्होंने जो है हु वाज द फाउंडर ऑफ हेज फंड, उन्होंने क्या किया था, अपना फंड जब शुरू किया था तो अपना तो खाली 40,000 ही डाला, बट बाजार से कितना उठाया? बाजार से उन्होंने दोस्त $60,000 उठाए। तो ये जो $60,000 उठाकर टोटल उन्होंने $1,00,000 का पूल बना लिया। अपना पैसा तो कितना डाला? 40,000। तो ध्यान से देखिए, 40,000 अपना रकम डालकर बाजार से उन्होंने 60,000 उठा लिया और फंड कितना बढ़ा लिया? $1,00,000 का। तो इनका लेवरेज कितना हुआ? 40,000 डॉलर डालकर $1,00,000 का, $40,000 डालकर $1,00,000 का पोर्टफोलियो बना लिया। तो लेवरेज हुआ 100,000 डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज 2.5। सो लेवरेज इज नथिंग बट फंड का साइज कितना है और उस फंड में आपने अपना कितना पैसा डाला है वो डिनोमिनेटर में डालिए। ये जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज मतलब होता है कि कितना गुना मल्टीपल आपने अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर लिया अपनी थोड़ी सी रकम डालकर। जब आप अपनी थोड़ी सी रकम डालते हैं तो इन्वेस्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि वाह यार ये फंड मैनेजर ने तो अपना पैसा भी दांव पे लगाया, तो चलो अपना पैसा तो थोड़ी गवाएगा, तो चलो हम भी पैसे लगाते हैं। वो भी जब पैसे लगाते हैं तो फंड और बड़ा हो जाता है। तो आपने बस ₹5 डालकर जो है फंड को ₹100 कर दिया, तो लेवरेज कितना हो गया? 100/5 20। तो लेवरेज आपको पता होना चाहिए क्योंकि हेज फंड मैनेजर्स बहुत भारी मात्रा में लेवरेज को यूज करते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट विच इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास, सेल कब करते हो? आप सेल करते हो, नॉर्मल सेलिंग किसको बोलते हैं? जब आपके पास कुछ पैसा होता है आप उसको सेल कर देते हैं। राइट, सॉरी, जब आपके पास कुछ स्टॉक होता है उसको आप सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि मेरे पास तो स्टॉक है ही नहीं, बट मुझे लगता है यार कि ये स्टॉक बाजार में ना फ्यूचर में गिर सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट सेल कर देता हूँ। तो मेरे पास स्टॉक है नहीं बट मैं इसको सेल कर दे रहा हूँ। तो मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है जहां बिना आप स्टॉक रखे आप किसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। इसकी निटी-ग्रिटीज में नहीं जा रहा, बट बाजार में ये ऑप्शन होता है। तो उससे क्या होता है, तो आपने मान लीजिए जो है एक स्टॉक था $1,000 का था, उसको आपने बेच दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट यू आर प्रिडिक्टिंग दैट इन फ्यूचर this stock will go down. So in future, if the stock price goes to $800, then what are you doing? You're doing nothing. Now when the stock has gone to $800, right? जब आपने सेल किया था तो आपको कितना मिला? शॉर्ट सेल किया था, आपको कितना मिला? $1,000।
अब जिस मार्केट में आपने शॉर्ट सेल किया था वो मार्केट सिंपल बोलता है कि ठीक है यार, बिना स्टॉक रखे मैं तेरे को शॉर्ट करने दे रहा हूँ, सेल करने दे रहा हूँ, तू 1 महीने बाद मुझे स्टॉक वापस ला के देना। तुम बोलते हो ठीक है सर, डन। वो बोलता है देखो, इस फैसिलिटी के लिए मैं तुमसे $10 चार्ज करूंगा। तुम बोलते हो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अभी स्टॉक सेल कर देते हो, आपके पास स्टॉक नहीं होता है। ये बाजार, आप इमेजिन कीजिए, बाजार ने आपको उधार दिया एक स्टॉक, आपने उसको सेल किया, आपके पास आ गए $1000, वो आपने डाल लिए पॉकेट में। अब 1 महीने बाद जब स्टॉक वैल्यू कम हो गया, $80 हो गया, सॉरी $800 हो गया, तो अब आपने बाजार में से $800 डालकर वो स्टॉक लिया और इसको वापस कर दिया। तो अब क्या हुआ, $1000 आपको मिले थे और $800 में आपने स्टॉक खरीदा, तो आपको नेट नेट प्रॉफिट हो गया $200। इस $200 में आपने जो है $10 उसको दिया, राइट, बाजार वाले को दिया कि चलो यार, तुमने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया, मुझे उधार में अपना स्टॉक दिया बेचने के लिए, तो ये लो। तो नेट नेट $10 देने के बाद आपको फायदा कितना हो गया, $190 का। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और हेज फंड्स में ये जबरदस्त तरीके से यूज होता है, राइट। हेज फंड्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि अच्छा यार, ये स्टॉक नीचे जा सकता है, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, एक्सेट्रा। उसके बेसिस पे जो भी स्टॉक नीचे जाने के कगार पे होता है, दे गो एंड शॉर्ट सेल दिस, and that way यार they are able to make lot of money, right? Last but not the least यार, और यहाँ पर विंस्लो, the person who actually यार invented hedge funds, he introduced 2 and 20 का concept. What is 2 and 20? This is very very popular hedge fund fees structure. Hedge fund fees structure, this is 2 and 20 is hedge fund fees structure, right? This can again be asked from you in the interviews, right? 2 and 20 का मतलब क्या है, that it means यार, the first number 2 means that you will be charged 2% commission of the total fund. So if I am an investor in a hedge fund which says 2 and 20, then I know that if I have invested $100 in this fund, then I will have to pay 2%, the first number 2% as the management fees. So every year I will have to pay how much? 2% of my portfolios. If I put $100, so 2% of 100 is $2 I'll have to pay as management fees. What is the second number 20? Second number 20 is called yaar. So first number is called management fees. The second number is called success fees, which means that 20% of the total profits will be charged by the hedge fund manager, right? So which means yeah, that if my $100 becomes $120, so how much profit did I make? $20. Uska 20%, which is $20 ka 20% is $4. $4 will be charged by the hedge fund guys. $16 I will get as a profit. Got it? So this is very very important, dear friends. If you are into any hedge fund management interviews, then these are the 5 critical terminologies which you should know, right? Friends, just in case yeah, you want to follow beta calculation more prominently, then I have prepared one full lecture which is short 11-minute video where I have explained you how to calculate beta in Excel. If you are interested, this thumbnail or this title you can search in my playlist, or in this YouTube video also on top I have put the playlist name. You can click on it and go through the beta calculation video where I have explained you how to calculate beta in Excel. Okay. Next up, friends, some movies and books for inspiration. So movies, there is a beautiful movie called The Big Shot. Please do watch it. काफी सारे OTTs पे ये available है. The Big Shot, right, which you see on the left, right? Do watch this movie. So इसमें आपको किस तरीके से hedge funds शॉर्ट सेलिंग में इन्होंने 2008 के अंदर बहुत पैसा बनाया। जब 2008 में मॉर्टगेज क्राइसिस जो है कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, तो वहाँ पर ये हेज फंड मैनेजर्स ने कैसे पैसा बनाया शॉर्ट सेलिंग करके। हेज फंड मैनेजमेंट को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार मूवी है, आप जरूर वॉच कीजिए अगर आपने नहीं किया। सिमिलरली इफ यू आर इनटू रीडिंग, देन मोर मनी देन गॉड बाय सेबेस्टियन मेलबी। मोर मनी देन गॉड बाय सेबेस्टियन मेलबी एक काफ़ी शानदार किताब है दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है। मैंने भी बहुत रिसेंटली इसको पढ़ा है। आप अमेजोन से जाकर बहुत सस्ते दाम पे इसको खरीद सकते हैं। आई थिंक $16 के आसपास का इसका प्राइस होना चाहिए।
तो बहुत ईजिली जो है आप इसको खरीद सकते हैं, आप इसका किंडल एडिशन भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मूवीज एंड बुक्स जिसके थ्रू जो है यू कैन लर्न मोर अबाउट हेज फंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट अप फ्रेंड्स, सैलरीज इन हेज फंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली जो अपॉर्चुनिटीज हेज फंड की होती हैं वो आउटसाइड इंडिया होती है मोस्टली। वाई? बिकॉज इंडिया एक काफ़ी रेगुलेटेड मार्केट है, तो इंडिया के अंदर हेज फंड मैनेजर्स को ज़्यादा लेग रूम या लीव इन नहीं देती है सरकार या सेबी। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेज विच आर देयर, दे इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया एज वेल एज देयर इन्वेस्टर्स आर आउटसाइड इंडिया. So if you work in these foreign banks or foreign hedge fund management enterprises, the entry level job is from $100,000 to $300,000. Managerial level jobs, which you generally get after 5 years of experience, is around $1 million. अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया की अगर बात करें तो दो अच्छी कंपनियां हैं, एक एवेंडस कैपिटल और एक मोतीलाल ओसवाल। इन दोनों में हेज फंड मैनेजमेंट का शानदार काम होता है। imjobs.com पे जाकर आप इन दोनों कंपनियों को सर्च कर सकते हैं, या इन दोनों कंपनियों की वेबसाइट पर जाके आप जो है हेज फंड मैनेजमेंट के रोल्स इनके अलग अलग टाइम पे खुलते हैं, आप उनमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक आपको फन फैक्ट बताता हूं ताकि आपको पता लगे कि हेज फंड में किस तरीके से लोग पैसा छापते हैं। तो ऑन योर लेफ्ट यार, दिस फोटो इज ऑफ द हेज फंड मैनेजर केन ग्रिफिन। ये सिटाडल करके एक कंपनी है जिसके जो है ये हेज फंड मैनेजर हैं, और इन्होंने 2021 में 2021 में जब पूरी दुनिया जो है कोविड से ग्रस्त थी, इन्होंने कुछ बहुत ही शानदार अपने हेज फंड मैनेजमेंट के लिए हेज फंड जो इनका हेज फंड था उसमें काफ़ी शानदार कुछ बोल्ड कॉल्स लिए थे, एंड ही अर्नड $1.6 बिलियन इन रेम्यूनरेशन। अब आप सोचेंगे सर इतनी सैलरी कैसे ले रहा है ये आदमी? तो ये सैलरी नहीं है दोस्तों, याद करिए। हेज फंड में आप दो तरीके से पैसा बनाते हैं, एक मैनेजमेंट फीस जो कि तो कुछ नहीं है, जितना हेज फंड का पूल होता है उसका 2% लेते हैं, तो उससे तो कुछ दाल गलने वाली नहीं है। मेजर पैसा बनाता है हेज फंड मैनेजर, वो बनाता है प्रॉफिट का परसेंटेज लेके, जो जनरली 20% होता है। तो इन्होंने मैसिव प्रॉफिट जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने 20% लिया होगा, विच अमाउंटेड टू टोटल ऑफ $1.6 बिलियन, राइट। नाउ लास्टली फ्रेंड्स, सम इंडस्ट्री जायंट्स टू फॉलो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप इंडस्ट्री जायंट्स को फॉलो करते हैं तो मेरा तो क्या है कि ये वीडियो आपको एक बेसिक वीडियो है, राइट। बट ये जो जायंट्स हैं ये दिन रात जो है आपके हेज फंड्स में काम कर रहे हैं। ये अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बहुत ही एक्साइटिंग पोस्ट डालते रहते हैं हेज फंड मैनेजमेंट को लेके। तो उनमें से एक हैं रे डालियो, जो कि फाउंडर हैं ब्रिज वाटर एसोसिएट्स। ब्रिज वाटर एसोसिएट्स फ्रेंड्स इज अ हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी, उसी के फाउंडर हैं। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है हेज फंड मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो उससे आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। दूसरे पायदान पे है दोस्तों जिम जिम सिमोन, राइट। जिम सिमोन भी जो हैं ये भी हेज फंड मैनेजर हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, राइट। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है आपके इंस्टाग्राम पे, बट यस ये भी जो है बीच बीच में अच्छा पोस्ट्स डालते रहते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। लास्टली फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ जॉर्ज सरोस। आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, क्योंकि जनरली दोस्तों ये जो है काफ़ी कंट्रीज़ के करेंसी के अगेंस्ट भी अपना जो है हेज फंड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो चलाते हैं, जिससे उन कंट्रीज़ को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बहुत परेशान किया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट, अपने हेज फंड मैनेजमेंट से। अब ये इंडिया के पीछे बहुत हाथ धो के पड़े हुए हैं, बहुत ही एंटी मोदी काइंड ऑफ पर्सन है, क्योंकि इनको नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से बहुत परेशानी होती है। तो मैं तो इनको ट्रूली लाइक नहीं करता हूँ, ना ही फॉलो करता हूँ, बट येस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार कि मैं आपको सारे पर्सपेक्टिव दूं अपनी इस वीडियो सीरीज में। तो जॉर्ज सोरोस भी हैं जिनको जो है काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट 100,000 फॉलोअर्स इनके भी हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगले एपिसोड में, एपिसोड 2 में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ हेज फंड में फंड्स कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाउंडर थे हेज फंड के, उन्होंने तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाया था हेज फंड का, बट वो इवॉल्व होते 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 कैसे हेज खाली नाम का रह गया
और एक्चुअली में हेज कुछ नहीं होता है। हेज फंड्स में यू गो ऑल आउट टू क्रिएट फिल्दी मनी। वो कैसे हुआ, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज वो हम जरूर देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। आप अगर जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डू पास इट ऑन टू पीपल इन योर नेटवर्क एंड फ्रेंड सर्कल सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट। एंड